माननीय सदस्यगण, दिल्ली लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को बताया कि जो 2 लोग गैलरी से कूदकर सांसद की कार्रवाई में खलल डाला, उन लोगों को सिक्योरिटी ने गिरफ्तार किया है। जो धुआं छोड़ा गया वो कोई नुकसान देने वाला नहीं था। सिक्योरिटी जांच कर रही है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी आप लोगों के सामने पेश की जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मजीद बताया कि ये जो मामला हुआ 0 ओवर्स के दौरान हुआ। इस तरह से ऐवान लोकसभा में सिक्योरिटी का टूटना कई सवालात को जन्म देता है। इस मामले में मैसूर का नौजवान मनोरंजन भी शामिल है। जुमला 4 लोग इस वारदात में पकड़े गए हैं। आज ही के दिन 13 दिसंबर को सांसद पर हमला हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी, उर्दू न्यूज। माननीय सदस्यगण, क्षेत्रों में रहने वाली लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। क्यों नारेबाजी कर रही हैं? क्यों नारेबाजी कर रही हैं? मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारे ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं है। कोई वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है। आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। It is a very serious breach and we should not miss out the significance of the day. Today is the anniversary of the parliament attack, and on this day this is happening. This is highly condemnable, and there must be a thorough probe into knowing how this breach happened, because how could they come into the building with canisters in their hand? So can you tell me right from the beginning what happened? 0 hour was going on. Suddenly 2 people jumped from one of the visitor gallery straight opposite the speaker's chair. They had canisters in their hand. Those canisters were open and they started emitting a yellow smoke. One of them ran towards the speaker's chair. He was overpowered by many members. He removed his shoe before he was overpowered. But those canisters were emitting a yellow smoke. We do not know what was the composition of the yellow smoke. But the fact is that they were able to jump in. The fact is they were able to bring 2 canisters into the parliament is a serious breach of security, especially on today when we are commemorating the 21st anniversary. This is the 21st anniversary of the attack on parliament. It was a terrible experience. It is inside the floor of the house. Suddenly we found 2 persons jumped and one is coming gradually forward. What is the target? How? Why they are moving like this? Nobody could guess. Suddenly some smoke started penetrating. It's a yellowish color. So all were in a nervous mood. I was expecting maybe they are going to blast something or maybe they are going to shoot somewhere. But ultimately all left the house. It is a security lapse. Today is the day. We should not forget that it is the day particular when our parliament was attacked. So how they entered into its instruments, releasing smoke, releasing sound, rushing one after one. No security inside the house. They at least jumped. Inside Lok Sabha. What happened, ma'am? Some people jump down. ऊपर से नीचे आ गया. Jump करके. और क्या बोले?
jump करके आ रही है, we are not counting. Have you seen? Have you seen, ma'am? Of course I have seen. Some people jumped down from the gallery. How many persons? And they are trying to run and beating. Some kind of gas is being thrown on the inside the house. तरह की कर रहे थे, मैम? क्या? All of it. 2 young men have been jumped from the gallery, and one, something has been holding by them, and some gas was emitting from their hands. Because today, today we have observed the, death anniversary of those martyrs who have sacrificed their lives for saving this parliament. And today itself it has been occurred. How many people were there who 2, jumped I down? think. 2. पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है वो कोई एक का नाम, जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था कि अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी में। हमारी सीट है उसके ऊपर जहाँ लोग बैठते हैं, वहाँ से जब हम अपनी जो संसदीय कार्रवाई चल रही थी और 5 या 4 मिनट में बंद होने वाली थी बिल्कुल कार्रवाई, क्योंकि लंच होने वाला था 1 से लेके 2 बजे तक का, तो धड़ाम जैसी आवाज़ आई। हमने तो देखा कि शायद कोई गिर गया, पर एक इतने और ऊपर से कूदा, तो फिर लगा कि प्लानिंग के तहत आए हैं ये और कुछ गड़बड़ है। हम उनकी तरफ भागे 6-7 MP और जाकर के और उसको दबोचने को जैसे तो जूता निकाल के मारने की तरफ जैसे करा, तो पर पकड़ लिया उसे हनुमान बेनीवाल ने और मैंने, और 4-5 MP और भी आगे, और उनकी पिटाई शुरू की। पर उसने शायद जूते में से निकाल के कुछ खोला, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं ऐसा हुआ कि सबको सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने कोई चीज़ खोली थी, ऐसी कोई चीज़। कुछ नहीं था, पर्चे नहीं थे, कोई नारेबाजी ज़्यादा नहीं थी, बस तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही को सब समझ में आ रहा था बस। उस समय कहाँ सुनने का था, जान कैसे बचे, मौत सामने दिख रही थी, ऐसा लग रहा था। बाहर भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, संसद के बाहर भी और हाउस तो के कहीं ना कहीं तो ढील है, जब भी तो वो आकर के बैठे भी, जूते में कुछ छिपा के लाए भी, वो कूदे भी, फिर आगे मंत्रियों की तरफ और स्पीकर की तरफ जिधर भाग रहे थे, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कुछ ना कुछ तो ढील रही है। ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಟ್ಟದಿದ್ರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ ಅವನು. ಅದು ದೇಗುಲ, ಆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋದು ಅವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸರ್, ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತಾಪಿ ಮಗನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಆ ಥರ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ಖಂಡಿದೀಯ ಸರ್, ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರೇ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।